Hello students, how are you? Welcome in class 11th accountancy. And in accountancy you studied the chapter number 10, how to record journal entries. In last chapter you studied the recording of journal entries, and in this video we are starting a new chapter, chapter number 10, accounting for goods and services tax. It is very important topic, and in this topic you studied about the how goods and services tax is applied, and in this video our learning topics are meaning of GST, taxes which taxes merge into GST, tax rate structure, and characteristics of GST and objectives of GST. So first of all, we start our first topic, meaning of GST. Meaning of GST means goods and services tax. GST is an indirect tax levied by a prescribed rate on every supply of goods and services rendered. That means goods and services tax is an indirect tax. It is not imposed to the supplier, purchaser, to any businessman, to any serviceman directly. Indirect tax, and which are levied at prescribed rate. Prescribed rate means fixed rate on every supply of goods. Here supply of goods means sale of goods. When the shopkeeper, businessman, any institution sells some goods, some articles, that GST is applied. And next is the services rendered, that means giving services to another parties, rendering service to the another person. And prescribed rate, that is called fixed rate. Rate is fixed and it is given in the schedule. So you must remember that GST Act was passed on the Parliament on 24th April 2017, and this GST came into effect from 1st July 2017. ये जो एक्ट है वो 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप हुआ था, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वन नेशन वन टैक्स. इसमें सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज पर एक फिक्स रेट पर जो है टैक्स, ओनली वन टैक्स अप्लाई किया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन नेशन एंड वन टैक्स. सो नेक्स्ट, many central tax and state taxes are merged into GST. Now we studied which taxes are merged into GST. Merge means mix हो जाना. Before starting, various types of state tax and central tax are imposed to the businessman to supply of goods, to sale and purchase of goods. But in GST, all these maximum taxes are merged into GST. So first is indirect taxes. First is luxury tax, second is entertainment tax, and third VAT. VAT means value added tax. These are the state level taxes which are merged into GST. Luxury tax, entertainment tax और वैट, ये जो स्टेट लेवल टैक्सेस थे इनको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया. एंड सेम सम सेंट्रल टैक्सेस आर आल्सो मर्ज्ड इन द जीएसटी, दैट आर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स. These are the central level taxes and merged into GST. That means merge means in place of all these taxes, इन सभी टैक्सेस के प्लेस पर एक ही टैक्स अप्लाई किया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी रेट स्ट्रक्चर. जीएसटी किस फिक्स रेट पर, अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जीएसटी इज इम्पोज्ड लेविड एट प्रिस्क्राइब रेट, फिक्स रेट. सो जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 5 slab.
on different items on different percentage is charged GST. So first is essential goods, essential item जो बहुत ही necessary goods होती हैं that are called essential goods, and like that food there is no GST, 0%. And next is common use items, common use that are used for every common man, that are common use goods, only 5% tax is levied. And next, standard rate is 12%, and maximum goods and all services standard rate is 18%. जो maximum goods और सर्विसेज हैं उनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट 18%. एंड maximum luxury items and tobacco, that is 28%. So there are 5 slabs and mostly 18% slab is used. Now our next topic is टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी. जीएसटी के अंडर जो है कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. नंबर 1, इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट मीन्स सेम स्टेट, and same state means if the purchaser belong to Haryana and he sell goods to the another party that is also belong to Haryana, that means seller and purchaser both are belong to same state, that is called intrastate. And in this intrastate, central GST is called CGST, and second is state GST, that is called SGST. And in case of union territories, union territory, it is called UT-GST, Union Territory GST. And in the intrastate condition, when seller and purchaser both are same state, then our tax is divided into 2 parts. For example, here tax is 18% and seller and purchaser are belong to same state, then 12% total tax rate is divided into 2 parts. That means 6% central GST and 6% state GST. And if the tax rate is 18%, then 9% tax is central GST and 9% tax is state GST. It is called intrastate type. So I hope you understand. In intrastate, tax rate is divided into 2 parts. That means half is given to the central government and half is given to the state government. And second is the interstate. Interstate means from one state to another state. Both seller and purchaser are not belong to same state. They are belonging to some another state. For example, seller is belong to Haryana and he sells his goods to the party of Rajasthan. That means seller is belong to Haryana and purchaser is belong to Rajasthan. So that in this situation it is called interstate GST. And in the interstate dealing, interstate working, that is interstate selling of goods, tax is given full at integrated GST, that is called IGST, on every sale and purchase of goods and rendered services, that IGST or CGST and SGST is paid. So our next topic is what are the characteristics of goods and service tax? What are the features of GST? First of all, its feature is comprehensive indirect tax. Comprehensive indirect tax, it is a important comprehensive indirect tax because all indirect taxes, center and state government taxes जितने भी थे वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए, एंड दीज आर merged into a single tax, that is GST.
एंड सेकंड इज यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। अभी आपने लास्ट जो है टैक्स रेट देखा, ये टैक्स रेट ऑल ओवर इंडिया में वन नेशन वन टैक्स स्लैब जो है फॉलो हो रही है। दैट मीन्स इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट का सेलर किसी भी स्टेट के परचेजर से डीलिंग करेगा तो सेम रेट्स जो है यहाँ पर फॉलो होंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। GST rates are same for the all person for all states and union territories. And third is GST paid is not a cost. जो GST paid की जाती है परचेज के टाइम, for example a purchaser purchase a goods and GST is paid. This GST is paid not for a cost. वो उसके लिए कॉस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि जब वो उन गुड्स को सेल करेगा तो उसको जीएसटी वो चार्ज करेगा। दैट मीन्स वो परचेज के टाइम पे करेगा तो सेल्स के टाइम उसको कलेक्ट कर लेगा। सो दैट्स व्हाई जीएसटी पेड इज नॉट अ cost. GST paid on purchase of goods and services termed as input. GST is not a cost for purchaser but it is an asset. ये परचेजर के लिए एक एसेट का काम करेगी एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जो उसको जीएसटी कलेक्ट होगी उसकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड पर दैट आर टर्म्ड आर आउटपुट जीएसटी, वो वहीं से ही उसको सेट ऑफ करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेट। एंड फोर्थ इज जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो है एक वैल्यू एडेड टैक्स है बिकॉज जीएसटी पेड परचेज, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे या सर्विसेज को परचेज करेंगे देन जीएसटी पेड एंड देन इट इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। तब हम इसको क्या राइट करेंगे, इनपुट जीएसटी। और इसको हम कहाँ से सेटल करेंगे, इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड एंड व्हेन द बिजनेस ऑनर सेल्स द गुड्स then he collect GST from the purchaser and that's why it is called output GST. So these are both set up from purchaser to seller. So that's why it is not it is not increased, it does not increase the cost, it is termed as asset. Next is objective or advantages of GST. What are the advantages of GST? इतने सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स को अप्लाई किया गया, वन नेशन वन टैक्स। तो इसने एक जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारे नेशन को या बिजनेस ऑनर को, हमारे ट्रेड को क्या ऑब्जेक्टिव क्या एडवांटेजेस रहे। फर्स्ट एडवांटेजेस है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी से कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो डिक्रीज हो गई। वो डिक्रीज कैसे हो गई कि जब इससे पहले जब परचेजर अपनी गुड्स परचेज करता था तो उसको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। जैसे मैंने बताया अभी सेंटर टैक्स देता था, एक्साइज ड्यूटी पे करना, सर्विस टैक्स पे करना। उससे क्या होता था, वो ऑल आर एडेड इन द गुड्स कॉस्ट। वो जितने भी टैक्स पहले पे किए जाते थे जीएसटी से पहले वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होते चले जाते थे और दैट मीन्स वो गुड्स जो है गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन जीएसटी से जैसे आपने अभी देखा कि परचेज के टाइम पे की जाएगी लेकिन सेल के टाइम जो चार्ज कर ली जाएगी, जब पार्टी जो बिजनेस ऑनर उसको सेल के टाइम गुड्स की सेल करेगा तो उसको चार्ज कर लेगा। तो वो परचेज वाली जो जीएसटी उसने पे कर रखी है वो सेल वाली जीएसटी से उसमें से ही उसको सेट ऑफ कर लेगा। तो दैट्स व्हाई ये जो है जीएसटी से कॉस्ट गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं होगी, वो गुड्स की कॉस्ट को डिक्रीज हो जाएगा। पहले टैक्स गुड्स पर लगता था, वो गुड्स में ऐड हो जाता था, इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी जब गुड्स पर परचेज पर हमने पे किया तो वो गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा, कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेगा बिकॉज इट इज चार्ज फ्रॉम द सेलिंग टाइम। सेकेंड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब
बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना बहुत ही इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया। जीएसटी के पीरियड से पहले, बिफोर प्री जीएसटी पीरियड, जो टैक्स, जितने भी मल्टीपल टैक्स इम्पोज किए जाते थे बिजनेस की एक्टिविटी से, उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती थी और बहुत सारे स्टेट टैक्सेस एंड central taxes and municipal corporation also imposed many taxes. So that's why उससे पहले जो बिजनेस की एक्टिविटी को करना थोड़ा सा क्रिटिकल वर्क हो जाता था, लेकिन आफ्टर जीएसटी बिजनेस is doing is very easy because it will registered and administrated by one indirect tax. जो ये जीएसटी है वो एक ही रजिस्टर्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड से एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है। हमने उसमें के लिए क्या किया जाता है, हर पार्टी को, हर बिजनेस ओनर को अपना एक जीएसटी नंबर जो है, एक जीएसटी नंबर अचीव लेना होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसके बाद वो उसी के अंदर ही अपने सेल और परचेज की इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैलकुलेशन करता है। तो सो दैट आफ्टर जीएसटी डूइंग ऑफ बिजनेस इज वेरी इजी। एंड थर्ड इज डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। इस जीएसटी के बाद हमारी एक कॉमन नेशनल मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो लेविड हो गया है। टैक्स रेट क्या रहा, सिमिलर गुड्स पर सेम हो गया। वन नेशन में कहीं भी, नेशन के किसी भी कॉर्नर से हम गुड्स को परचेज करेंगे, सर्विसेज हम परचेज करेंगे, तो वहां पर जीएसटी टैक्स की रेट का कोई अलग डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम टैक्स से टैक्स चार्ज होगा सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। तो एक नेशनल मार्केट का ग्रो होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। इस जीएसटी के द्वारा जो है टैक्स छिपाने की, टैक्स इवेजन कैलकुलेट करने का काम जो है बहुत ही इजी हो गया है, बिकॉज ये जीएसटी की जो प्रोसेस है इट इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। जीएसटी की प्रोसेस, टैक्स को पे करना, टैक्स को सेट आउट करना फ्रॉम अगेन, इट इज डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिकली जो है हर बिजनेस ऑनर की अपनी एक रिटर्न फाइल की जाती है और असेसमेंट बनाई जाती है, जिससे जो है इस असेसमेंट ने टैक्स रिड्यूस इन्वेजन कंपाइलेंस कॉस्ट को बिल्कुल ही कम कर दिया है। नेक्स्ट है गुड्स बिकमिंग चीपर। जैसे जीएसटी से पहले क्या था, टैक्स जैसे ही लगता था, अगर हमारे नेशनल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है तो उससे गुड्स में कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने या कोई किसी अनदर अथॉरिटी ने टैक्स लगाया उस गुड्स की इनकमिंग और आउट गोइंग पर, तो वो गुड्स को क्या कर देता था, कॉस्टली बना देता था। लेकिन जीएसटी ने इस से गुड्स को चीपर बना दिया, बिकॉज इट्स इफेक्ट द कास्केडिंग इफेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बिकम चीपर। हेयर कास्केडिंग मीन्स टैक्स आवर टैक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने टैक्स को रिमूव कर दिया। सो नेक्स्ट इज द अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द अप्लाइड ऑफ जीएसटी, introduction of new one tax GST increase our foreign investment. Foreign nation, foreign countries are very eager to invest the money in our nation. So these are the benefits, advantages of the GST. I hope you understand all these topics. Thank you. Have a nice day.